बहुत बढ़िया सी जगह पर अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे टर्टल नेस्टिंग होती है एंड दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे टर्टल नेस्टिंग होती है इंडिया में। Trying some local street food over here. So what he is having in his plate is this is the poi, this is the bread. So this place is done in quite old traditional Goan style, as you can see. So yes, if you want to taste the traditional Goan style food, then this is the place for you. Hi and welcome back to Life with Dimple and welcome to Goa. So to be precise, I'm in Morjim, Goa and this vlog is about exploring North Goa. तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि मैंने जो गोवा में एक्सप्लोर किया, द लोकल फूड, द स्ट्रीट्स, द कल्चर, द म्यूज़िक एंड द गोवन वाइब, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा एंड आई विल एक्सप्लोर गोवा इन माई ओन वे. सो येस, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो. गोवा जाने के लिए हमने ली फ्लाइट बैंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एंड वी अराइव्ड एट द ब्यूटीफुल टर्मिनल 2. फ्लाइट सुबह 5:30 बजे की थी, इसलिए हम लोग घर से 2:30 निकल गए थे एंड वी रीच द एयरपोर्ट बाय 3:30, जिसका मतलब है रात की पूरी नींद गई. लेकिन गोवा पहुंचने की एक्साइटमेंट अलग लेवल थी. प्लेन पूरा बादलों के बीच में से होता हुआ गया एंड वी टच डाउन एट द गोवा डबलिन एयरपोर्ट एट 7:30 in the morning and we were super excited to explore Goa for the next 5 days. एयरपोर्ट से होटल पहुंच के वी डिड एन अर्ली चेक इन एंड वी डिड अ ब्रेकफास्ट ऑल्सो फ्रॉम द होटल एज इट वॉज 9 in the morning. बाय द वे वी आर स्टेइंग एट द टर्टल बीच रिजॉर्ट इन मॉर्जिम. होटल ओके है, लेकिन वन थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट द होटल वॉज इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द बीच. इट्स जस्ट 1 kilometer away from मॉर्जिम बीच. So since we reached Goa quite early this morning, around 8 o'clock we reached and अभी हम लोग आए हैं लंच के लिए होटल में थोड़ा बहुत रेस्ट करके because we were very tired. So we have come to this cafe which is Cafe Gunavanti and यहाँ पे सब कुछ मिलता है, the Indian meal and the fish थाली, the Goan food. तो गोवा आए और फिश थाली नहीं खाई तो क्या किया. So yes, that's why we are here. And this is all for all those who like eating fish. So yes, for Abhyan we have ordered some rice and dal and Shamu will have fish curry. तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसा थाली है and what is the taste. And so this is the dal tadka and the rice that we have ordered for Abhyan and simple restaurant, but I'm sure the taste and the delicacy is what this restaurant has to offer. So this is the fish thali and Goa style. Goa style, right? This is rava fish. Rava fish. The western part of Karnataka, western part of मतलब Goa में they do this kind of Mangalore. They do this sort of fry. They fry it with rava, which is suji. It may or may not be the same fish, but it's made of like tamarind, coconut और कोकम बोल के एक चीज़ है, उसका मिश्रण से बनता है. Tamarind कोकम से बनता है. Okay, the traditional Goan style. Goan style. हाँ. It's more like a रसम जैसे साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे ये खाते हैं. धनिया पत्ता और I don't know what it is named. ये तो बेसिक अचार है. सब्जी और मिक्स. This is आलू की सब्जी and that is cauliflower. That is no. I think this is egg bhurji. Egg bhurji. Egg bhurji. Okay. So yeah, bon appetit.
So this is the bill and it's in handwritten. So it's quite a traditional way of ordering food and billing it. So 520 is the total bill and this is all we have taken from here. Also this shop is 13 years old. So yes, you can definitely come here if you want to taste the original and the traditional fish curry, the fish thali. So we are roaming between मॉर्जिम एंड मैंड्रिम और स्कूटी राइड पे हम लोग बहुत मज़े कर रहे हैं. Very dirty. So या तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान है? होटल में जाके बिकॉज हम लोग बहुत थक गए एक्चुअली. हम लोग बहुत 3 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले थे. सो या गोइंग बैक टू द होटल फॉर द डे. कल नया दिन है, नई स्टार्ट करेंगे एंड गोवा को और भी एक्सप्लोर करेंगे. सो या सो वी हैव नाउ कम टू अ प्लेस जहाँ पर वड़ा पाव और चाय बहुत फेमस है एंड हम यहाँ पे सेकेंड बार आ रहे हैं. लास्ट गोवा ट्रिप पे भी हम लोग यहाँ आए थे एंड डेवलप बाय आश्विन बीच पार्किंग एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा. सो ये आंटी यहाँ पे रोज़ आते हैं एंड 5:30 के बाद आपको यहाँ पर आश्विन बीच के पास आपको इनका स्टॉल दिख जाएगा वड़ा पाव का. सो आई जस्ट शो यू अराउंड. या दैट इज़ द स्टॉल एंड दिस इज़ जस्ट ऑपोजिट टू दिस मैंड्रिम सोशल कैफ़े. तो अगर आप इस जगह से आ रहे हैं सो या दिस इज़ द प्लेस. सो हम लोग अभी चाय पियेंगे और वड़ा पाव खाएंगे. सो ये रहा हमारा वड़ा पाव एंड चाय एंड वी आर इन Goa enjoying our vada pav meal. हम लोगों ने सोचा कि ब्रेकफास्ट के लिए यहीं पे रुकते हैं. इट्स नॉट अ वेरी हाइट कैफ़े. 3 साल ही हुए हैं इस कैफ़े को बने हुए. बहुत एंट्रेंस है, वेरी नाइस और एक सूदिंग सा म्यूज़िक चल रहा है. सो इट्स वेरी नाइसली डन ऑल्सो द इंटीरियर. सो या ऑर्डर दे दिया एंड वी आर वेटिंग फॉर द ब्रेकफास्ट नाउ. पता चला है इट्स अ टर्टल नेस्टिंग साइट. यहाँ पे जो है ना रेड ऑलिव बोल के एक टर्टल होता है, माइग्रेटरी टर्टल्स. वो लोग आते हैं एक साथ, बच्चे अंडे छोड़ के जाते हैं. तो ये जो पीरियड है अभी तो अंडे छोड़ दिया, नेस्टिंग हो गया. तो इट्स अ नेस्टिंग साइट ओवर देयर. तो अभी आगे जाएंगे तो वी कैन सी दैट. हाँ, इंटरेस्टिंग. तो सो बेसिकली यहाँ पे नेस्टिंग साइट है टर्टल्स का, इसीलिए शायद इसका नाम भी टर्टल बीच है. टर्टल रिजॉर्ट है, टर्टल कैफ़े है. एंड द रेट्स आर ऑल्सो वेरी रीजनेबल. बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा आपको. सो ब्रेकफास्ट के हिसाब से आई थिंक द प्राइसेस आर गुड इनफ. So here comes the English breakfast. So we have bread, butter, sunny side up, and these are beans. Actually, ये beans है. So yes, this is the breakfast with coffee. You get 3 options: coffee, juice, tea. So we ordered coffee. और मेरा orange juice भी आ चुका है. And I'm waiting for my sandwich. So this is my club sandwich with some French fries. And yeah, this is my breakfast.
सो क्लब सैंडविच में आपको ये 3 लेयर्स दिख जाएगा. दिस इज़ कैबेज, दिस इज़ कैरेट एंड दिस इज़ टमेटो. सो काफ़ी फिलिंग लग रहा है मुझे. या लेट्स स्टार्ट. आई थिंक हर एक का अपना एक तरीका होता है टू एक्सप्लोर गोवा. And for me, it is exploring the cafes around, the local cafes, the local life and beaches of course. तो जस्ट हम जहाँ पे ब्रेकफास्ट अभी हमने जहाँ पे किया, द टर्टल कैफ़े मेरे जो पीछे है, उसके ओनर ने हमें सजेस्ट किया है कि हम एक टर्टल नेस्टिंग साइट पे जाएं, विच इज़ वेरी क्लोज बाय. यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है एंड इट्स वेरी क्लोज टू नेचर. सो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग अभी. एंड येस, दिस इज़ माई वे ऑफ एक्सप्लोरिंग गोवा. एंड सुबह सुबह हम लोग बीच पे जाते हैं. वी लाइक द waves of the water and the nature around. So yes, जैसा जैसा मैं गोवा को एक्सप्लोर कर रही हूँ, I'll share it with you. यहाँ पे टर्टल नेस्टिंग होती है एंड दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे टर्टल नेस्टिंग होती है इंडिया में. सो द टर्टल इज़ रेड रिपली ऑलिव टर्टल और नेस्टिंग हो चुकी है एंड दे एक्चुअली फाइंड फॉर अ प्लेस. तो क्योंकि पूरे गोवा में मॉर्जिम एंड मैंड्रिम आर वेरी काम एंड पीस बीचेस एज कम्पेयर टू अदर बीचेस इन नॉर्थ गोवा, तो नेस्टिंग यहीं पर होती है. सो दैट्स वेयर वी आर गोइंग. ये जगह. सो दिस इज़ द प्लेस ओके, जहाँ पर ये आगे जो आपको थोड़ा सा जगह दिख रहा है, यहीं पे नेस्टिंग होती है. सो 35-40 किलोज के टर्टल्स होते हैं, मदर्स होती है, मदर टर्टल, एंड वो लोग जल्दी से अंडे देके उनको प्रोटेक्ट करके जाते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट्स डन. और ये जगह आप देख सकते हैं, काफ़ी खाली बीच है. इट्स नॉट वेरी क्राउडेड, क्राउड है ही नहीं यहाँ पे. सो दिस इज़ जस्ट इनसाइड द कैफ़े टर्टल. तो आप लोग वहाँ से अंदर की तरफ आएंगे तो आप यहाँ आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज गोवा में सब बीचेस बहुत ही क्राउडेड है. दिस इज़ द वन, अनलेस यू आर इन साउथ गोवा. साउथ गोवा के बीचेस तो काफ़ी क्लीन और काम और लेस क्राउडेड है, बट दिस इज़ द प्लेस यू कैन कम एंड दिस इज़ द टर्टल नेस्टिंग साइट ऑल्सो. सो येस. Goa, and for lunch we came here at Bal Cow. So they serve traditional Goan cuisine, लेकिन unfortunately हम लोग late हो गए and it is closed. So this is the menu for starters. इन्होंने आज लगा रखा है. It's quite nice. Last time भी हम लोग यहाँ पर आए थे and we really wanted to have lunch here, but हम लोग late हो गए आज क्योंकि 1 बजे तक we were at Morjim Beach. We were exploring that. फिर होटल में कुछ रेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ आए. So nonetheless, if you are here in Mandrim, तो आप definitely यहाँ पे आइए for traditional Goan cuisine. We are going to somewhere else. तो चलिए चलते हैं. So we are at Thalassa right now and it's be a very happening cafe for sunset. तो चलिए चलते हैं. This is
द व्यू राइट नाउ, और इसी के लिए ये कैफ़े इतना पॉपुलर है, आप देखिए। एंड द सीटिंग इज़ देयर ऑल्सो, वहाँ पे भी आप लोग बैठ सकते हैं। उधर बार है, यू गेट मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, एवरीथिंग। एंड यस, दिस इज़ द एम्बियंस ऑफ द प्लेस। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दिस प्लेस क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू गेट एन अमेजिंग सनसेट व्यू। तो आप लोग यहाँ सनसेट के टाइम पे आइए, और वही बेस्ट टाइम है यहाँ आने का। एंड ऑल्सो फूड इज़ टेस्टी। अगर हम प्राइस की बात करें तो थोड़ा हायर साइड पे है, बट ये एक बार तो आ ही सकते हैं। इफ़ यू आर कमिंग टू सियोलियन देन येस, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड थलासा। Tried the Goan street food. So one of us tried this chicken stew with the poi. Poi is a very popular bread in Goa and it tasted good. Also it's very affordable. You will see these stalls alongside the road at night or during the evening time. Also जो मुझे देख के अच्छा लगा that these stalls are powered by the Goan government as an initiative of self-employment. Yes, you can definitely try one of these stalls during the evening time in Goa. बहुत सारा धनिया है, ब्लैक पेपर है, ओके, कोरिएंडर लीव्स है, धनिया पत्ता। अच्छा, ओके, दिस इज़ द ट्रेडिशनल गोवन स्टाइल फूड। Alongside this stall, I saw a stall जहाँ पे वेज बर्गर मिल रहा था, so I thought of having that. तो जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, ये बर्गर बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी था एंड इट वाज वेरी फिलिंग ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम वेरी रीजनेबल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई इवन ट्राइड इट फॉर द सेकेंड टाइम। So this church is also close by and we were just going home and wind up for the day. So this is our Lady of Miracles Church in Morjam, Goa. You can also visit this and yes, बहुत सुंदर सा लग रहा था रात को, तो हम लोगों ने सोचा कि रुक के इसका फ़ोटो लेते हैं। So yeah, this is the church, very beautiful. अभी बंद हो गया and you can come during the day. गुड मॉर्निंग, इट्स डे 3 इन गोवा और हमारे होटल विंडो के सामने ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है एंड दिस इज़ द विमेंस स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन हियर। तो रात से ही बहुत टेस्टिंग और रिहर्सल चल रहा था। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर विंडो इन द मॉर्निंग एंड आई एम सिपिंग माई कप ऑफ टी, द मॉर्निंग टी इस व्यू के साथ। सो या आज का दिन स्टार्ट करेंगे एंड गोवा को और भी एक्सप्लोर करेंगे। चीयर्स। सो डे 3 इन मॉर्जम और हम ब्रेकफास्ट के लिए अलग अलग कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड सो दैट आई कैन ऑल्सो शेयर दैट विद यू इन द वीडियो। सो राइट नाउ वी हैव कम टू अ कैफ़े विच इज़ जैश बार एंड रेस्टोरेंट विच इज़ ऑन द मॉर्जम बीच रोड इटसेल्फ। सो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं हाउ इज़ द एक्सपीरियंस फॉर द ब्रेकफास्ट। Lot of options you have in breakfast, both veg and non-veg, and you have black tea, green tea, masala tea, soups, noodles, sizzlers. तो काफ़ी options हैं यहाँ पे actually. They have authentic Goan specialities also. The Goan fish curry is available and the prices are reasonable. Tandoori is available. Then they have desserts also, desserts, pancakes. So yeah, it's a very good option if you're coming here. Then yes, on Morjam, it's just opposite the Morjam beach road.
सो शंभू का चाय आ गई एंड दिस इज थर्ड चाय This is your third cup of tea, I think, since morning, right? And this is my cold coffee. And this is the breakfast that Shambhu has ordered. Chai is nice, right? yes. And this is the breakfast he has ordered. Normal bread omelette. Cheese, mushroom. chicken, mushroom omelette. Oh, this is cheese, chicken, mushroom omelette with bread. So it looks nice. And Avu is having his idli vada with butter. So yeah. काफ़ी अच्छा एम्बियंस है ब्रेकफास्ट के लिए. इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट. Here comes my veg sandwich. It looks good. So yes, this is the breakfast we are having at Jash. So we had breakfast. It's a small cafe, family-run cafe. I think it's in the family. So yes, अच्छा लगा सुबह breakfast करके. Now we are at the beach, Morjim Beach. So गोवा आए हैं और रोज़ बीच में नहीं जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा. At least for me, I think exploring beach, just sitting around the beach waves is what makes me happy. So yes, going towards the beach now. So this is the turtle nesting site which I told you last day. तो वहाँ पर actually turtles है अंदर अभी, okay? But अंदर जाना allowed नहीं है. And this is the nesting site Forest Department. by Government of Goa. और ये आपको मॉर्जिम बीच में ही मिलेगा. गोवा आप अपने तरीके से एक्सप्लोर कीजिए, आपको जैसा मन है वैसे एक्सप्लोर कीजिए. हमारी कोई भी आइटिनरी नहीं होती है गोवा के लिए. वी जस्ट एक्सप्लोर ऑन द वे. ऐसा नहीं है कि ये फोर्ट में जाना है, इस फोर्ट में जाना है, इस कैफ़े में जाना है, उस रेस्टोरेंट में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. वी जस्ट एक्सप्लोर एज एंड व्हेन व्हाटएवर वी एक्सपीरियंस. तो या ये समुद्र की लहरें हमें रोज़ सुबह यहाँ खींच लाती है. So this place is done in quite old traditional Goan style, as you can see. Mainly you'll find non-veg options more than vegetarian options. और veg में आपको starters वगैरह कुछ नहीं मिलेगा. So yes, if you want to taste the traditional Goan style food, then this is the place for you. You should not miss it. But yes, you should come before 3:30 because after 3:30 they don't take any order, and then it reopens at 6:30 in the evening. Cafe is in Mandrim. Yes, so yesterday we missed it, and today we are fortunate to have lunch here. I mean, Shambhu had lunch here. That was the lunch in Balchao. See, अभी बिल्कुल क्लोज लिखा है. क्लोज मीन्स आपको यहाँ कोई भी दिखेगा नहीं और क्लोज हो जाएगा. So yes, come before 3:30. And this is also a very nice place if you want to do a photo shoot, क्योंकि proper Goan style में बना हुआ है. So if you are coming here, then yes, photos भी ले सकते हैं आप अच्छी अच्छी. So that's how I'm exploring Goa. And yeah. क्या बात है.
हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 4 इन गोवा एंड हम लोग लंच के बाद सियोलिम चले गए टू सेलिब्रेट माई बर्थडे. सो इट वॉज अ स्मॉल बर्थडे सेलिब्रेशन विच आई वॉन्टेड टू कीप पर्सनल, सो आई डिड नॉट शूट. सो येस, आज हम सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जा रहे हैं फ्रॉम मॉर्जिम टू कैंडलिम. सो माई नेक्स्ट व्लॉग विल बी फ्रॉम गोवा itself, so stay tuned for that. And if you like this video, then please don't forget to hit on the like button and do subscribe to my channel if you like my video. I'll leave you with the stunning views behind me right now. Till then, take care. Bye bye.